गणेश मंगलम, श्री गणनायक मंगलम, श्री गणेश मंगलम, श्री गणनायक मंगलम, श्री गणेश मंगलम, श्री गणनायक मंगलम, मंगलम स्वयंभू सिद्धि विनायक मंगलम, मंगलम स्वयंभू सिद्धि विनायक मंगलम, सिद्धि विनायक मंगलम। Welcome to the Bhajnavali broadcast, directed and hosted by Sri Gyan Rajhans. Bhajnavali is a spiritual broadcast consisting of English discourses, Hindi pravachan, and melodious bhajans. भजनावली के प्रसारण में आपका स्वागत है। हमारे प्रसारण में आप अंग्रेजी और हिंदी प्रवचनों और मधुर भजनों सुनते हैं। धन्यवाद। Now, here is your host, Sri Gyan Rajhans. Thank you, Shalini. Dear worldwide devotees of Bhajnavali, before I tell you about today's broadcast, let me wish you and yours once again, on behalf of the entire Bhajnavali team, a very prosperous and divine New Year. Today, to follow our tradition, I will once again begin the New Year by talking about the power of prayer for your good health, prosperity, and divine growth throughout the New Year. Along with the discourse in English and Hindi, I will also play at least 6 popular prayer mantras and bhajans. अब इससे पूर्व कि मैं आज के प्रसारण का विषय आपको बताऊं, पुनः एक बार भजनावली परिवार, समस्त परिवार के सभी सदस्यों की ओर से नूतन वर्षाभिनंदन एवं प्रभु प्रार्थना कि आपके तथा आपके परिवार के लिए यह नूतन वर्ष सर्वथा मंगलमय हो। एवं आज का हमारा विषय भी प्रार्थना विज्ञान ही है। एवं आज आप प्रार्थना मंत्रों एवं लोकप्रिय प्रार्थना भजनों को भी सुनेंगे। तो आइए आज के इस नूतन वर्ष का प्रारंभ करें कतिपय प्रार्थना, वैदिक प्रार्थना मंत्रों से। स्वर दिया है स्वर्गीय पुरुषोत्तम जलोटा ने। Let us begin this New Year's first broadcast with the chant of Vedic mantras by late Purushottam Jalota. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Hari Om Ishavasya sarvam Yatkincha Jagatyam Jagat Tena Tyaktena Bhunjitha Ma Gridha Kasya Siddharam Yam Brahma Varunendra Rudra Maruta Stunvanti Divyaistavai Vedai Sangha Padakramopanishadai Gayantiyam Samaga Dhyanangvasthita Tadgatena Manasa Pashyantiyam Yogino Yasyantam Navidu Surasurgana Devaya Tasmai Namah Mukam Karoti Vachalam Pangum Langhayate Girim Yakripatamaham Vande Paramananda Madhava
या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। You are listening to the only non-commercial Vedic religion webcast. आप सुन रहे हैं वैदिक धर्म का एकमात्र विज्ञापन रहित प्रसारण। धन्यवाद। Let us talk about the power of prayer. Why some prayers are answered and why the others are not answered. Prayer in Hindi is called prarthana, which has two meanings. One is to ask, beg or beseech a favor, and the other is to understand God in a special way. Pra means special, arthana means understanding the meaning. If you only accept the first meaning, that is to ask, beg or beseech a favor, then you might as well not say your daily prayers to God. Because begging is justified, if at all, when the donor has refused to give or has given partially. God has given us already spontaneously what is essentially vital for our life and its accomplishment. The supply is infinite, free of cost, and regular throughout our life. Secondly, God is omniscient, all-knowledgeable. He knows what is best for us and also when, how much, and in what form. Do not insult him by saying what is best for you and also when, how much, and what you want. God is our Supreme Father. He has infinite love for us and is rather over-anxious about our welfare. He withholds what is unessential and harmful for us. Even earthly parents provide unasked for the needs of their children. Begging is unessential much more from Supreme Father, who knows better what our needs are. If your daily prayer is always in the form of begging, then it means lack of confidence on your part in God's love, willingness, spontaneity, and magnanimity. What we have already got from him also was never asked for. Here I am reminded of a story. There is a story about a church minister who asked, "Do you say your prayers every day, my son?" Replied the youngster, "No,
because some nights I do not want anything, and if I want the same thing, I just say ditto and go to sleep. But as I said, it is an insult to God if you have to tell Him what is best for you. Then why pray at all, and how and when prayers are answered? As I said before, prayer also means to understand God in a special way, prarthana. We promised God that we would sing His glory every day and night if we could get out from the dirty and filthy wombs of our mothers. God answered the prayers, and we got the human body, the soul, and the intellect. Now we have to keep our promise. Therefore, the sole purpose of our existence is to pray to God daily and meditate on His holy name. We already are so thankful and grateful that even if we prayed continuously and regularly throughout our life, we would not be able to repay our debt in full. However, I know you are not satisfied with my answer because you have examples of Draupadi, Vibhishan, and the elephant in the grips of a crocodile crying for God's help and receiving it. So why should you not do that? The answer is in your question. The key word is help. Asking for help implies that you have done all you can. Now you have surrendered completely to the omnipotent, all-powerful, and He, being the compassionate one, would like to see that His child receives appropriate help. Because He has promised in the Gita, "No me bhakta pranashyati," my devotee can never perish. But in order to be thus secured, you have to first prove that you are a devotee in true sense. Devotion means one-way love. In other words, you love God and keep on loving regardless of what you get in return. Be such a devotee and you will come to realize that your will does not exist, only God's will does. However, if you still insist on telling God what you want, you might as well be factual. You want something, tell Him about it, just as you would say it to your father. However, do not forget to tell Him at the end of your prayer that you would like to have it only if He, that is God, thinks it is good for you. You must mean it, that you will leave it entirely to Him to decide, and you will accept His decision as best for you. If you do this regularly, it will bring to you what you ought to have and thus fulfill your own destiny. A word of caution, however. Never start a prayer without first thanking God for all the wonderful things He has done for you so far, and also asking for His forgiveness for any sins that you might have committed intentionally or unintentionally. One other thing, do not pray always for yourself. Pray for those who are in trouble or are worse off than you. God will love you for that, and once you have acquired His attention, all your prayers will be answered unconditionally. तो आइए आज की पहली प्रार्थना सुने और तत्पश्चात शेष चर्चा। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को
को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तिहारा पाया। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तिहारा पाया। ऋषि मुनि हारे कर कर ध्यान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। किसने देखी तेरी सूरत, कौन बनावे तेरी मूरत। किसने देखी तेरी सूरत, कौन बनावे तेरी मूरत। तू है निराकार भगवान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। पर्वत घाटी नदी समंदर, तू रमता इन सब के अंदर। पर्वत घाटी नदी समंदर, तू रमता इन सब के अंदर। तेरे बस में सकल जहान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तू है बन में, तू कानन में, तू है तरु तरु के पातन में। तू है वन में, तू कानन में, तू है तरु तरु के पातन में। कोई न दूजा तेरे समान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। जल में थल में तू ही समाया, सब जग तेरा जलवा छाया। जल में थल में तू ही समाया, सब जग तेरा जलवा छाया। तू है घट घट के दरमियान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तू राजा को रंक बनाता, तू भिक्षुक को तख्त बिठाता। तू राजा को रंक बनाता, तू भिक्षुक को तख्त बिठाता। तेरी लीला ईश महान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। सूरज तेरी महिमा गावे, चंदा तुझ पर बलि बलि जावे। सूरज तेरी महिमा गावे, चंदा तुझ पर बलि बलि जावे। ईश्वर कर सबका कल्याण, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। प्रार्थना कि जब जब बात आती है तो मन में एक बात अवश्य आती है, और वो यह कि एक जानवर को भी रोटी का एक टुकड़ा डाल दो तो वह भी पूंछ हिलाकर मालिक की प्रार्थना करके तब रोटी खाता। तो क्या हम जानवर से भी गए बीते हैं कि जिस ईश्वर ने हमको सब कुछ दिया उसकी हम प्रार्थना भी न करें?
भला इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है? विचार करके देखिए तो मनुष्य थोड़े से धन के लिए धनवान की प्रार्थना करता है, बल के लिए बलवान की प्रार्थना करता है, विद्या के लिए विद्वान की प्रार्थना करता है। तब हमें धन, बल या विद्या प्राप्त होती है। अगर हम ईश्वर की प्रार्थना करें तो ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उससे हमें सारी शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं। ईश्वर की प्रार्थना करने से स्वयं को तो लाभ होता ही है, परंतु इससे सारे विश्व को भी लाभ पहुंचता है। प्रार्थना से वातावरण शुद्ध होता है। आज देश और विश्व में वातावरण अशुद्ध हो रहा है। देश और विश्व का वातावरण शुद्ध हो, इसके लिए प्रार्थना हर मनुष्य को करनी चाहिए। अगर लोग ईश्वर की प्रार्थना करेंगे तो वे प्रार्थना के शब्द सारे विश्व में फैल जाएंगे और उससे बहुत लाभ हो सकता है। तो प्रश्न है कि हम प्रार्थना करने से क्यों हिचकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर मैं कुछ ही क्षणों में दूंगा। You are listening to the only non-commercial Vedic religion webcast. आप सुन रहे हैं वैदिक धर्म का एकमात्र विज्ञापन रहित प्रसारण। धन्यवाद। अब इससे पूर्व कि मैं प्रार्थना विज्ञान की चर्चा आगे बढ़ाऊं, आइए वह प्रार्थना सुने जो आपको वर्षों से अत्यधिक प्रिय लगा। मनुष्य की करो प्रार्थना, मनुष्य की करो प्रार्थना, मनुष्य की करो प्रार्थना, मनुष्य की करो प्रार्थना। जिसने जीवन दिया, जिसने दिया जग में सबसे बड़ी एक ही शक्ति है, उसकी भक्ति से बढ़कर नहीं भक्ति है, भक्ति से बढ़कर नहीं भक्ति है। छल कपट लोभ के सारे संताप से बस उसी की शरण में तेरी मुक्ति है, वो हरेगा तेरी यातना। मनुष्य की करो प्रार्थना।
जिसने जीवन दिया, जिसने दिया आत्मा, जिसने जीवन दिया, जिसने दिया आत्मा, जो है संसार में सबका परमात्मा, जो है संसार में सबका परमात्मा। प्रश्न है कि हम प्रार्थना करने से क्यों हिचकते हैं? क्यों हर घड़ी प्रार्थना में संलग्न न रहते हैं? इस संदर्भ में मुझे एक कहानी याद आई। बड़ी रोचक कथा है, ध्यान से सुनिएगा। किसी समय नारद मुनि वैकुंठवासी भगवान विष्णु के निकट उपस्थित हुए। भगवान ने समयोचित सत्कार कर कुशल क्षेम पूछा। मुनि जी ने कहा, भगवान, लोग माया को अबला कहते हैं, किंतु वह इतनी सबला और प्रबला होती है कि आपके पास आपके भक्तों को आने नहीं देती, वर्जन करती है और बरवश रोकती है। जीव परवश हो जड़वत हो जाता है और उसकी सारी सुधि बुद्धि जाती रहती है। मुनि जी की बातों को सुन भगवान ने माया को बुलाया। आदेश पा उपस्थित हो करबद्ध प्रार्थना करती हुई माया बोली, भगवान, क्या आज्ञा है? भगवान ने तेज स्वर में कहा, मुनि जी कहते हैं तू मेरे भक्तों को भटकाकर और विषयों में अटकाकर रखती है, मेरे निकट फटकने तक नहीं देती। क्या बात है? ठीक ठीक बता, अन्यथा। भयभीत हो थर थर कांपती हुई माया बोली, देवेश, मेरा कोई दोष नहीं, मैं निर्दोष हूं। प्रभु, मैं बार बार चेतावनी देती हूं, ऐ जीव जाग, जल जाल से तू भाग और प्रभु पद में लाग। भगवान, मैं स्पष्ट कहती हूं, मेरी ओर मत आ, जगदीश की ओर जा। परंतु जड़ जीव अपनी जड़ता छोड़ता ही नहीं, मेरी बात मानता ही नहीं और सांसारिक यात्रा करता रहता है। भगवान, आप ही न्याय करें और इन मुनि जी को समझा दें, मेरा क्या दोष है जो रोष में आकर ये मुझे कोस रहे हैं। भक्त भय भंजन भगवान ने कहा, माया, तुमने जितनी बातें मुझसे कही सो मेरे मनोरंजन के लिए अथवा इसको तुम सत्य प्रमाणित कर सकती हो? इसके उत्तर में माया ने बड़ी मार्मिक बात मायापति से कही। जरा ध्यान से सुनिएगा। माया ने कहा, हे जगपालक, यदि कोई ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की ओर जाती हो और उस स्टेशन का स्टेशन मास्टर खतरे का सिग्नल दे 1 बार, 2 बार, 3 बार, फिर भी यदि गाड़ी चालक अबोध बालक बन वर्जित पड़ाव पर गाड़ी ले जाने की धृष्टता कर ही ले तो उसकी क्या गति हो? भगवान, एक बात और निवेदन करूं, परवरदिगार, यदि कोई यात्री किसी निर्दिष्ट स्थान के लिए प्रस्थान करे और यात्रा करने के समय ही कोई छींक दे तो क्या यह यात्रा ठीक समझी जाती है? अथवा यदि यात्रा काल में ही कोई रोने लगे तब भी वह शुभ नहीं समझा जाता? कितना कहूं अशरण शरण, घर से चलते समय अगर कोई टोक देता है तो कुशल यात्री अशकुन समझकर अपनी यात्रा रोक देता है। माया ने आगे कहा, हे देव, अब आप ही दया कर इंसाफ फरमावें। जबकि उपरयुक्त तीनों में से कोई भी घटना घटित होने पर अशुभ और अमंगल होता है, तब जहां ये तीनों ही घटनाएं घटित हों वहां यदि उस राही की राह में जान जाने की नौबत आए अथवा जान चली ही जाए तो कौन सी असंभव बात है? हे जगत के मालिक, जीव जब जगदीश का संग छोड़कर जगत की ओर अग्रसर होता है, यानी जग में जन्म ग्रहण करता है, उसी समय भूमिष्ठ होते ही उसे पहले छींक आती है, पीछे वह शिशु रोता है और कहां कहां प्रश्न कर रोता ही रहता है। इस तरह छींक, रुदन और प्रश्न, इन तीनों रूपों में मैं वर्जन करती हूँ, सावधान करती हूँ। इतने पर भी यदि कोई नहीं माने तो इसमें मेरा क्या दोष? भगवान, कहा भी है, जन्मत पहले छींक भई, पीछे दी है सिरोई, ताते जग में जीव की कुशल कहां ते होई। तो श्रोताओ, प्रश्न है कि क्या हम मनुष्यों के लिए
शरणदायक, मंगलदायक और कुशल क्षेम प्रदायक कोई आश्रय स्थल नहीं? इसका उत्तर संतों ने दृढ़ता के स्वर में दिया है। वे कहते हैं हाँ है, अवश्य है, और वह है सर्वेश्वर शरण का भजन। एक और प्रार्थना सुने। इस प्रार्थना का प्रत्येक शब्द ऐसा लगता है जैसे मेरे लिए ही लिखा गया हो। इसी हेतु इसे मैं रोज करता हूं। शायद आपको भी यह प्रार्थना पसंद आ जाए। तो आज इतना ही। अब आज आपसे आज्ञा लेने का समय आ गया। मैंने सोचा कि जितनी प्रार्थनाएं आज मैं आपको सुना सकूं उतना उत्तम होगा, क्योंकि यह नूतन वर्ष का पहला प्रसारण है। तो पुनः एक बार नववर्ष की अनेक अनेक शुभकामनाएं। प्रभु आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके मित्रों के लिए यह नूतन वर्ष अत्यंत ही लाभदायक और सुखदायी बनाए। भव